CGC ਝੰਜੇੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਤਿਅਮ 2025 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਗੇ ਚਿਹਰੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਕਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Person standing here is a villain, and just to satisfy all of these people and their parents, I have died. जब कोई मुझे पूछता है तुम कैसे हो, मैं बीच में बोल देता हूँ मर मर के जी रहा हूँ। I die for my living. Yes, मैं मौत का सौदागर हूँ, अपनी मौत बेचता हूँ। But one thing which I discovered is that who started with, so to say, an art film like Dhruv, I managed to do so many commercial films. The point is, it was still the same me who had trained at the National School of Drama. I was now doing films which had never been trained. मैंने किथे गया तू? मैं क्या बताऊँ यार? इधर ही पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर पढ़ा हूँ. But what I discovered is that I am comfortably rootless. So my 350 odd films and my travels as a vlogger, as a motivational speaker, and now also as a stand-up comedian, I travel 25 to 29 days a month. Every day, nearly every alternate day, I'm at a new city, Then you're not afraid of falling. You will say, okay, I'll learn. And that is when you will have the audacity कि boss मुझे कुछ जिंदगी में कुछ खास करना है. And that is what I call the evolving voice. क्योंकि आप जो the moment you left home, you went to school and now you've come to college, your voice, what you're thinking is evolving, my friend. I kept evolving. Just to let you know, I am evolving. Just 3 years back, I discovered the wonderful world of social media. So even though a lot of people at my age do not think of social media, but I did. I discovered now I've got 8 million plus subscribers all over. Anyone of you seen my YouTube channels? Yes? Okay, a few of you. Anybody seen my Instagram? Yeah? Alright. So what I want to share with you is not just these two, also LinkedIn, Facebook, etc. I not only talk about food and travel, I talk about motivation, I talk about things that inspire me. What I want to share is that's only available if I am relevant. So a key part of you being here, my friends, is not just for you to get the degree that you have come here for, but to ongoingly train yourself so that you remain relevant and valuable. क्योंकि मैं आपको एक चीज का वादा करता हूँ, whatever that you're learning in this college or anywhere, very rarely will you be using it in the future, because the world is changing. But what this college or any institution will do for you, if you are primed, if you're ready, my learning spirit is ignited, then you will remain relevant. You will remain grateful to an organization. नहीं, अब स्टूडेंट्स के बीच में आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं तो अच्छा ही फील होता है और यही लोग हैं जिन्हें देश को चलाना है। और मैं तो स्टूडेंट्स के लिए पिछले 10-12 साल से लगातार काम कर रहा हूँ और मेरे लिए तो बहुत खुशी होती है मुझे जब मैं यूनिवर्सिटी में आता हूँ, कैंपस में आता हूँ। और अब जो जनरेशन है, ये जो नई जेन ज़ी जिसको बोलते हैं, बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही डायनेमिक लोग हैं। भारत का नक्शा बदल देंगे ये लोग, इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ इनके पीछे आके। और सबसे अच्छी बात है कि आपके यहाँ लिटरेचर फेस्टिवल है और आर्ट और लिटरेचर मैं मानता हूँ कि सोसाइटी का सोल होता है और जिसको आजकल थोड़ा नीचा दर्जा मिल गया है, लेकिन जब यूनिवर्सिटीज़ में लिटरेचर और आर्ट को प्रमोट किया जाता है तो इससे राष्ट्र का जो भविष्य है वो सोलफुल बनता है।
और बिना आर्ट और लिटरेचर के सोललेस बनता है। तो आजकल हथियारों का बहुत प्रमोट हो रहा है। क्या? हथियारों का बहुत प्रमोट हो रहा है। हथियार सोशल मतलब? मीडिया। वेपन्स हो रहा है। हाँ जी, सोशल मीडिया पे बहुत हो रहा है, जो नौजवान है ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं उसमें। क्या कहना चाहते हैं? नहीं देखिए, मैं तो किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हूँ और मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास किसी तरह का वेपन होना चाहिए। मेरी पर्सनल ओपिनियन है। यहाँ क्या चल रहा है पंजाब में मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि मैं आज ही पहुँचा हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक आदमी के हाथ में कोई भी औजार देंगे तो कभी ना कभी वो उसका इस्तेमाल करेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर है ही क्यों, फिर चाहिए ही क्यों। जो चीज़ अगर आप समझिए, आप ऐसा समझिए कि जिस चीज़ की आपको आवश्यकता ही नहीं है वो आप लेते हैं। क्या जहर आपको ज़रूरत नहीं है, आप रखते हैं क्या घर में? नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आप जहर में घर में रखेंगे तो कभी ना कभी आप या आपसे जुड़ा या आपके बच्चे या परिवार का कोई व्यक्ति उसे ग्रहण करेगा, और अगर नहीं करने वाला है तो रखना ही क्यों। तो इसलिए वेपन मुझे लगता है कि कोई भी इस राष्ट्र में किसी को भी रखने की आवश्यकता नहीं है, अनलेस वो एक लाइसेंस्ड वेपन हो। सर, नौजवान पीढ़ी पोएट्री से दूर होती जा रही है, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं खुद कविता लिखता हूँ ताकि नई जनरेशन जो है कविता से जुड़े, और मैं बहुत सारी नई जनरेशन के लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, उनको मैं एनकरेज करता हूँ। बल्कि हमारी एक फाउंडेशन है, आई एम बुद्धा फाउंडेशन, उसमें हम लोग उनको मेंटोर करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, और बहुत सारे क्रिएटिव लोग जो हैं आज हमारी फाउंडेशन से आगे निकले हैं। कविता जो है आदमी की, ये समझ लीजिए, सुख दुख मुसीबत हर वक्त अकेलेपन की सबसे अच्छी साथी है। थैंक यू। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? जी बहुत ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह का एक लिटरेचर फेस्टिवल मनाया जा रहा है स्टूडेंट्स के साथ, और ये एक बहुत अच्छी मुहिम इसलिए है क्योंकि मैं सीखने को एक प्राधान्यता देता हूँ, क्योंकि जब कोई सीखने की इच्छा रखता है तो वो पूरी ज़िंदगी अपने आप को वैल्यूबल रख पाता है। और यही हमारी इनसे बात हो रही थी कि ज़रूरी है कि बच्चे या कोई भी ये समझ ले कि सीखने को ज़िंदा रखना वो थॉट अच्छा नहीं है, वो आपको अपने आप रेलेवेंट और वैल्यूबल रखता है। और मेरे ख्याल से बहुत इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव इन योर पार्ट, एंड इसलिए आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू बी हियर। जैसे 90s में लेटर्स का एक रुझान चल रहा था, उसके लेटर लिखते, चिट्ठियां लिखते थे जिसे, हाँ, तो वो अब विलुप्त होता जा रहा है। व्हाट्सएप और उसने इसकी चीज जगह ले ली है, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा हो रहा है भाई। देखिए, हर चीज़ जो नई हो रही है ना, अगर आप उसको पुराने से तौले वो गलत होगा, क्योंकि पुराना वक्त और अब में, जैसे अभी हम जिस तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं, ये तो पहले सोच भी कोई नहीं सकता था। अब ऐसे ही मोबाइल फ़ोन से शूट कर ले रहे हैं, ऐसे हम लोग कर पा रहे हैं। सो आइडिया ये है कि आप जो पुराने संस्कार हैं सिर्फ उसके बारे में ना सोचें, ये सोचें कि हम किस तरीके से मॉडर्निटी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स इसके अलग कुछ आयाम हैं, कुछ चीज़ें खो जाती हैं, बट दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हमारे हम सबकी ज़िंदगी में बहुत पेस है, गति आई है, और ये सब चीज़ें हमारी इस गति के हिसाब से बनी हैं। सर तुसी फूड बहुत लाइक करते हो, पंजाब का स्पेशल फूड कितना पूरा 1.5 घंटे बात कर लूँ मैं पंजाब के खाने की। अमेजिंग। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ खाना पसंद नहीं करता हूँ, मैं लोगों के साथ जाकर उनके साथ खाना पसंद करता हूँ, और वो हर बार मुझे नया एक्सपीरियंस मिलता है। और हर जगह, हर क्षेत्र में मैं जाता हूँ, मैं एंजॉय करता हूँ। वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है।